پاکستان سٹاک ڈیٹا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم جس شیئر کا تجزیہ کریں گے وہ ہے طارق گلاس لمیٹڈ TGL۔ اس کمپنی کا بیسک فائنینشیل ڈیٹا انالیسس ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیں۔ وہ انالیسس ہم نے 13 اکتوبر کو کیا تھا جب اس کی پرائس تھی 105 روپے۔ اس کے بعد انہوں نے 12 روپے کا ڈیویڈنڈ بھی دیا اور ایکس پرائس بنی 93 روپے۔ آج یہ 128 پر ہے اور 30% سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ہم اس کا کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتے، نہ لے سکتے ہیں، کیونکہ جو 2-3 دوسرے شیئرز کا انالیسس کیا تھا ان کی قیمت تو نیچے گر گئی، بس اسی شیئر کی بڑھی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ ایسے ہی چلتی ہے۔ ویسے تو کسی شیئر میں 20 سے 30% فائدہ ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ 130 سے 150 اس کمپنی کی وہ پرائس ہے جس میں ہم نے بھی اسے بیچنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کی وجہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے، لیکن آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اب اسے بیچ دیں۔ ساتھ ہی یہ کہتے چلیں کہ ہماری سب باتوں کے باوجود اس کی پرائس 200 پر بھی جا سکتی ہے اور 80 پر بھی، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ ایسی ہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 2 باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، کیا یہ کمپنی اس قابل ہے کہ اپنے پچھلے سال کا پے آؤٹ اس سال بھی جاری رکھے، جو تھا 25% بونس ہاف ایئر پہ اور 120% ڈیویڈنڈ فل ایئر پہ۔ اور سوال نمبر 2، کیا ہمیں اس پرائس پر اسے بیچ دینا چاہیے یا ہولڈ کرنا چاہیے، یا اور بھی زیادہ خرید سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ایک چیز بہت ضروری ہے، آپ اسے ڈسکلیمر بھی سمجھ لیں۔ یہ بہت ہی ہائی لیول انالیسس ہوگا، اس میں ہم اگلے سالوں کے EPS کا اندازہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیلز اور EPS کے بڑھنے یا کم ہونے میں بہت سی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، مطلب انفلیشن بڑھے، انٹرسٹ بڑھے، کمپنی میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو سب کا اثر آتا ہے۔ جو آنے والے وقتوں کے EPS کا ہم اندازہ لگائیں گے وہ ضروری نہیں اسی طرح آئے جیسا ہم نے اندازہ کیا۔ اس لیے صرف ہماری ویڈیو میں بتائی ہوئی باتوں کو دیکھ کر آپ نے سرمایہ کاری کا فیصلہ نہیں کرنا۔ تفصیل سے یا تو خود آپ جائزہ لیں اس کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس کا، یا پھر کسی فائنینشیل اینالسٹ سے رابطہ کر کے اپنا فیصلہ کریں۔ EPS کا انالیسس کرنے سے پہلے ہم اس کمپنی کی کچھ تازہ خبریں دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے ابھی PSX میں ایک نوٹس دیا ہے کہ وہ ICI کمپنی کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور اگر یہ ہو گیا تو فلوٹ گلاس کی پروڈکشن بڑھا سکیں گے۔ اس سلسلے پر گفتگو کرنے کے لیے ان دونوں کمپنیوں کی بورڈ میٹنگ بھی ہونے والی ہے۔ عام طور پر پرائیویٹ کمپنیوں کی بورڈ میٹنگ جب ہوتی ہے تو معاملات پہلے ہی طے پا چکے ہوتے ہیں اور بورڈ سے صرف اجازت درکار ہوتی ہے۔ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو تو بورڈ اعتراض کرتا ہے، ورنہ یہ صرف کاغذی کارروائی کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بورڈ کو پہلے ہی ان چیزوں سے باخبر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے امید تو یہی ہے کہ یہ جوائنٹ وینچر ہوگا۔ اس میں دونوں کمپنیوں کا منافع میں حصہ کتنا ہوگا یہ بعد میں ہی پتہ چلے گا، تو آپ نے آنے والی بورڈ میٹنگ کی اناؤنسمنٹ پر نظر رکھنی ہے۔ اس سے کمپنی پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے یہ نوٹس بھی دیکھ لیں کہ طارق گلاس نے اپنی ٹیبل گلاس کی پروڈکشن 3 سے 4 مہینے کے لیے روک دی ہے، جس سے کچھ منافع کم ہوگا اس سال۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نوٹس میری نظر سے گزرا تو نہیں، لیکن انہوں نے اپنی ڈائریکٹرز رپورٹ میں بتایا تھا کہ انہوں نے اپنا فلوٹ گلاس کا ایک پلانٹ بھی اس کے ساتھ ہی 6 مہینے کے لیے بند کرنا ہے۔ دونوں کو بند کرنے کا مقصد ریپیئر ہے، تو فلوٹ گلاس پلانٹ میں بھی کچھ عرصے کے لیے منافع میں کمی ہوگی۔ اب ہم اس کمپنی کے فائنینشیل ڈیٹا کو دیکھیں گے۔ یہ باتیں آپ نے توجہ سے سننی ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ آسان طریقے سے بتا سکیں۔ اب دیکھیں اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ جب ہم بات کریں گے تو آپ نے اپنی توجہ ہمارے ایرو پر رکھنی ہے۔ پوری ورکنگ خود سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ سمجھنا مشکل ہوگا۔ طارق گلاس کے 2 مین پروڈکٹس ہیں، ٹیبل ویئر گلاس اور فلوٹ گلاس۔ فلوٹ گلاس کے 2 پلانٹ ہیں، فلوٹ گلاس 1 اور فلوٹ گلاس 2۔ فلوٹ گلاس 2 سے پروڈکشن پچھلے سال مئی جون میں شروع ہوئی اور 2021 کی سیلز میں اس کا حصہ صرف 1 مہینے کا شامل ہوا، لیکن فائنینشیل سال 2022 کے پہلے کوارٹر میں جو ستمبر میں ختم ہوا، فلوٹ گلاس 2 کا کمپنی کی سیلز میں پورا حصہ ہے، اسی لیے ان کی سیلز میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اندازے کے لیے کوارٹر 1 کی فلوٹ گلاس سیلز کو پورے سال کی سیلز نکالنے کے لیے 4 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً 18 بلین کی سیلز بنے گی، یعنی پچھلے سال فلوٹ گلاس سیلز تھیں 11 بلین
उसमें तकरीबन 70% का इजाफा बनेगा। लेकिन क्योंकि फ्लोट ग्लास 1 6 महीने के लिए बंद हो रहा है, तो इस साल के आखिर में 18 बिलियन सेल्स मुश्किल हैं। लेकिन 2023 में इतनी हो सकती हैं और आने वाले सालों में ज़्यादा सेल्स से ज़्यादा मुनाफे की भी तवक्को होगी। फ्लोट ग्लास के 2 प्लांट होने की वजह से कुल सेल्स में फ्लोट ग्लास का हिस्सा 69% हो चुका है और टेबल ग्लास का 31%। हमने प्लांट की कैपेसिटी भी दर्ज की है कि रोजाना कितने मेट्रिक टन ग्लास बनते हैं। हम इन्हें एक फैक्टर निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है हमारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। बातों को इससे ज़्यादा आसान करना हमारे लिए मुश्किल होगा और ये भी उम्मीद रखते हैं कि आपको अपने स्कूल की मैथ्स याद होगी, तो फिर आप समझ लेंगे। अब हम एक अजम्पशन ले रहे हैं कि जितना इन ग्लास का हिस्सा सेल्स में है, इतनी ही शरह से इनका हिस्सा ईपीएस में मौजूद होगा। यानी टेबल ग्लास का सेल्स में हिस्सा है 31%, तो क्वार्टर 1 की ईपीएस 8.4 का 31% बना 2.6 और बकाया ईपीएस 5.8 को जब हम कैपेसिटी फैक्टर के हिसाब से देखेंगे तो फ्लोट ग्लास का हिस्सा बना 3.0 और फ्लोट ग्लास 2 का हिस्सा बना 2.7। ये राउंड ऑफ फिगर्स हैं, तो एक तो पैसे आगे पीछे हो सकते हैं। अब हमने अंदाजा किया कि टेबल वेयर ग्लास को 4 महीने और फ्लोट ग्लास 1 को 6 महीने बंद करने की वजह से अगले क्वार्टरों में कितना ईपीएस आएगा। वो एडजस्टमेंट करने के बाद 2022 फाइनेंशियल साल का ईपीएस तकरीबन 24 रुपए हो सकता है। लेकिन हमारी बात याद रखिएगा कि जरूरी नहीं ऐसा हो, क्योंकि सेल्स और मुनाफे को बहुत सी चीजें मुतासिर करती हैं। ये वर्किंग इस सोच के साथ बनाई गई है कि खर्चे वैसे ही चलते रहेंगे जैसे पहले क्वार्टर में चल रहे हैं। अब अगर हम ये सोचें कि फाइनेंशियल साल 2023 में सब प्लांट मुकम्मल कैपेसिटी पर चलेंगे तो इनका ईपीएस बनना चाहिए 33.6। मतलब अगले सालों में प्रॉफिट काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टेबल ग्लास रिपेयर होने के बाद उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन अभी हम उस फैक्टर को नजरअंदाज कर लेते हैं। अब तारिक ग्लास जो आईसीआई के साथ जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, इसमें फ्लोट ग्लास की कैपेसिटी तकरीबन इतनी होगी जितनी अभी के दोनों फ्लोट ग्लास की कैपेसिटी मिलाकर है 1000 मेट्रिक टन पर डे। मतलब वो फ्लोट ग्लास का नया प्लांट बनाएंगे। अब अगर ये जॉइंट वेंचर का एग्रीमेंट हो गया और अंदाजे से सोचें कि इसमें दोनों कंपनियों का हिस्सा 50% हुआ और वो प्लांट अगर जून 2023 तक तैयार हो गया, 1-1.5 साल तो लग ही जाएगा, तो उस जेवी से इनका मुनाफा इतना ही हो सकता है जितना फ्लोट ग्लास 2 से हो रहा है। मतलब फाइनेंशियल साल 2024 में इस जॉइंट वेंचर की सेल्स और मुनाफा कंपनी की सेल्स और मुनाफे में शामिल हो जाएंगे और इसकी वजह से इनकी ईपीएस साल 2024 में 44.5 तक भी जा सकती है। जॉइंट वेंचर होगा या नहीं, ये कुछ दिनों में पता लग जाएगा, और अगर मान ले कि ये नहीं होगा तो भी 2024 में ईपीएस 33.6 तक हो सकती है और वो भी बहुत अच्छी है। अब हम अपने सवालों की तरफ आते हैं। पहला सवाल था कि क्या ये कंपनी इस काबिल है कि अपने पिछले साल का पे आउट इस साल भी जारी रखे, जो था 25% बोनस हाफ ईयर पे और 120% डिविडेंड फुल ईयर पे। 2021 में इनका ईपीएस था 15.3 और 2022 में हमने अंदाजा लगाया कि वो तकरीबन 24 तक हो सकता है। 2023 में वो 33.5 हो सकता है और डाइल्यूटेड ईपीएस यानी कि बोनस देने के बाद ईपीएस कम हो जाता है, तो डाइल्यूटेड ईपीएस जो इनका बनेगा 2023 में वो 25.2% बनेगा। और 2024 में अंदाजे के मुताबिक जॉइंट वेंचर बन जाने के बाद इनका ईपीएस हो सकता है 44.5 रुपये और डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब 2022 और 2023 का बोनस निकालने के बाद इनका ईपीएस कितना बनेगा, वो भी 25 रुपये बनेगा। माफी चाहता हूँ, बन सकता है, क्योंकि होगा क्या ये तो अल्लाह ही जानता है। जब किसी कंपनी का ईपीएस इस तरह बढ़ रहा हो या वो अपना ईपीएस मेंटेन कर रहे हो, तो इस बात की बहुत उम्मीद होती है कि कंपनी अपना पे आउट मेंटेन करे। वैसे तो बढ़ा भी सकती है और मर्जी हो तो घटा भी सकती है, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि मेंटेन करेंगे। कुछ दिनों में इनका 6 महीने का रिजल्ट आने वाला है, तो हम जान लेंगे कि ये क्या करते हैं। अब दूसरा सवाल, क्या हमें इस प्राइस पर इसे बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या और भी खरीद सकते हैं? अब इसकी टारगेट प्राइस 130 से 150 जो हमने अपने लिए रखी, उसकी वजह बताते हैं।
ये थियोरेटिकल बात है। परफेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में जब कोई किसी शेयर में सरमायाकारी करे तो ये सोच के करता है कि साल में अगर ये 10 से 12% मुनाफा दे तो ठीक है। मतलब अगर 100 रुपए का शेयर खरीदा और इसने साल में 10 से 12 रुपए डिविडेंड दिया और साल के बाद भी इसकी प्राइस 100 रुपए हुई तो मुनाफा 10 से 12% होगा। अब अगर तारिक ग्लास इस साल के आखिर में 120% डिविडेंड दें तो 10 से 12% मुनाफे के लिए इसकी प्राइस रेंज होनी चाहिए 100 से 120 रुपए। ठीक बात। लेकिन अगर वो 6 महीने के रिजल्ट के साथ 25% बोनस भी दें तो बोनस शेयर्स पर भी हमें साल के आखिर में डिविडेंड मिलेगा। इसलिए शेयर की प्राइस 100 से 120 एक्स बोनस होनी चाहिए और 25% बोनस से पहले ये बनेगी 133 से 160। तो इसी अंदाजे के मुताबिक हमने अपनी शेयर्स बेचने की रेंज मुकर्रर की 130 से 150। अब 130 में भी ये शेयर बुरा नहीं, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा इसलिए बेच देंगे क्योंकि मार्केट के प्लेयर्स अच्छे शेयर को भी बिला वजह गिरा देते हैं। फिर अगर ये गिरेगा और इसकी प्राइस ज़्यादा नीचे चली जाएगी तो उसी बेचे हुए पैसों से हम इसको दोबारा खरीद लेंगे। पिछले कुछ दिनों में इस शेयर में वॉल्यूम भी काफ़ी लगा है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें बाइंग हो रही है। लेकिन जिसने ज़्यादा खरीदा वो एक दिन में सारा बेचकर दूसरे लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो सिर्फ बाइंग देखकर किसी शेयर में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आज 3 फरवरी को ये 128 पर बंद हुआ। हमने इस शेयर को पहले ही खरीद रखा है, इसलिए हम तो इसे 128 पर नहीं खरीद रहे। लेकिन अगर ये हमारे पास ना होता और इन सारी मालूमात का हमें इल्म होता तो शायद हम इसको इस प्राइस पर भी थोड़ा बहुत ज़रूर खरीदते, लॉन्ग टर्म का सोचकर। खसूसन अगर इनका बोर्ड जॉइंट वेंचर में दाखिल होने की इजाज़त दे दे फिर तो ये प्राइस काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आज कोई पहली मर्तबा इसमें ख़रीदारी करना चाहता है, 128 पे आप वो पूरे पैसे ना लगाएं जो आपने इस शेयर को ख़रीदने के लिए रखे हैं। कुछ अभी ख़रीद लें और अगर प्राइस नीचे चली गई तो कुछ वहाँ ख़रीद लें, और अगर इसकी प्राइस नीचे ना गई तो फिर उन पैसों से आप कोई दूसरा अच्छा शेयर भी खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही शेयर के पीछे पड़ जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इसको 128 पर ख़रीदें और कुछ दिनों के लिए या कुछ अरसे के लिए इसको प्लेयर्स नीचे ले आएं। अगर आने वाले 4 सालों में हर साल ये 25% बोनस देते गए, जो उम्मीद तो नज़र आ रही है कि दे सकते हैं, तो ये 4 साल में ये शेयर फ्री हो जाएगा और अगले 5 सालों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये सरमायाकारी दुगनी हो सकती है। लेकिन अगर बड़े प्लेयर्स को इस शेयर पे ज़्यादा एतमाद हो गया या वो इससे जल्दी मुनाफा कमाना चाहें तो वो इसको 5 साल से जल्दी भी ज़्यादा ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि प्लेयर्स की बातें वही जाने। ये एनालिसिस करने के लिए हमने डेटा PSX की वेबसाइट से लिया और कंपनी की फाइनेंशियल्स को भी देखा। तो आप ये सारा डेटा खुद देखकर वेरीफाई करें, मुकम्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ें, फिर अपना फैसला करें। वैसे भी ये कोई बाय सेल कॉल तो है नहीं। मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं, ताकि हमें तज्जिया बढ़ाने की वजह मिल सके। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाने में आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।